ملت اور خصوصاً اہل بڑھانا، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مجلس برسی جو ہے وہ شمسی اعتبار سے کی جا رہی ہے۔ قمری اعتبار سے اس کی تاریخ 22 ذوالحجہ ہے۔ مولانا قبلہ موصوف فرزند علی صاحب کے متعلق جن لوگوں کا یہ بیان ہے، خدا کرے کہ یا تو وہ فرزند علی صاحب کو سمجھ جائے یا پھر اللہ ان کو ہدایت فرمائے، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بڑھانا نے فرزند علی صاحب کی قدر نہیں کی۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بڑھانا جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، جہاں جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں قبلہ موصوف کی تصویر موجود نہ ہو۔ بے شک بے شک بہت بڑی بات ہے آپ کو اپنے اجداد کے شاید نام ترتیب سے یاد نہ رہے ہوں، ان کے ایصال ثواب کی اتنی مجلسیں نہیں ہو پاتی۔ باپ کی ہو گئی، بیٹی کی ہو گئی، دادا کی ہو گئی، پردادا کی کون کرتا ہے بتایا؟ لیکن فرزند علی صاحب جس زمانے سے گئے الحمدللہ اہل بڑھانا ان کو ہر برس ایک برسی کی شکل میں اور ہر روز ایک فاتحہ کی شکل میں یاد کرتے ہیں۔ فرزند علی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کے متعلق مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا نظریہ کیا ہے، مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، نہیں بھی ہے تو ہونا چاہیے، لیکن میں اس بات کو بین اللہ و بین الرسول و بین المعصومین اور عند اللہ و عند القرآن اور عند اہل بیت اور جمیع المومنین مومنات کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فرزند علی صاحب کا توسل قرار دے کے جو میں نے دعا مانگی ہے، ائمہ معصومین کو بہت بڑی چیز ہے، تو میری دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مرحوم کی نگاہ کرم اور نگاہ خاص الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ میری سب کا اشتراک آیا ہو جائے۔ الہی میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں، کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ طالب علم کی یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ علم کی راہوں کو باز کرے۔ اب اگر مجھے ایک زمانہ پڑھانے کو گزر گیا یا گزر جائے، اور جیسے میری امیدیں ہیں کہ میں رہوں یہیں اور یہیں آخری دم نکلے، تو اب میرے وطن کے لوگ یہ کہیں کہ دوسرے سے میرے وطن والوں کو کوئی کہے کہ قبلہ فصیح حیدر کی انہوں نے احترام نہیں کیا اور قدر نہیں کی، تو یہ احمقانہ ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ میں خود خدمت خلق کے لیے دوسرے وطن آیا ہوں، اور ایک سلسلہ ہے ایک وطن سے دوسرے وطن جانا، تو یہ بات کوئی قابل معتبر اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ مولانا فرزند علی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کے لیے کمال یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے اساتذہ میں خصوصاً اپنے مرحوم نسبتاً میں ماموں جان بھی کہا کرتا تھا، مرحوم مولانا اختر حسین صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ سے سنا ہے کہ مولانا فرزند علی صاحب اپنے وقت کے وہ عالم تھے کہ جن کے گھر میں چکی پیسنے کی آواز تو آتی تھی لیکن چلانے والے کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ مولانا فرزند علی صاحب وہ شخصیت، میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، مولانا فرزند علی صاحب وہ شخصیت تھے اپنے زمانے کی قبلہ کہ جس وقت آپ نے حج یا بیت اللہ یا زیارت کربلا کا قصد کیا اور آپ جو ہے وہ دریائی اعتبار سے مسافر کی حیثیت سے گئے، تو جب آذان کا وقت ہوا تو آپ نے جو ہے وہ دریا میں غوطہ لگایا اور وقت کے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا فرزند علی صاحب قبلہ کا ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور و معروف رہا ہوگا اپنے زمانے میں، جو میں نے اپنے سرکار قبلہ استاد محترم نور اللہ مرقدہ سے سنا، میں نے بہت ساری باتیں سنی اس لیے کہ میرا سلسلہ بہت ٹائم سے ہے اور میں بہت وقت سے جڑا ہوا ہوں۔ تو مولانا فرزند علی صاحب کا ایک واقعہ یہ بھی بڑا اچھا ملتا ہے کہ فرزند علی صاحب نے اپنی اولاد کو قربان کر کے دوسروں کی اولاد کی حفاظت کرنے کا سلیقہ دیا۔ بے شک، کیا کہنے۔ تو یہ جملہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ میں طالب علم تھا، میرا نہج، میرا عقل، میرا شعور، میرا وقار لاؤبالی پڑنے والی جو زندگی ہوتی ہے اس کیفیت میں تھا۔ میں سوچتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو قربان کر کے دوسرے کے بیٹوں کو بچائے۔ تو اب جب میں نے مجلس سے پڑھنا شروع کی تو پھر میں پہنچا اور آج پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ کب کہی وہ بات
और कब आए। अख्तर साहब किबला ऐसे बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे नीचे हौज़े में इमाम हुसैन में, और वो बड़े पैसों का पजामा और वो टाइट वाली शेरवानी, और बड़ा गुस्सा आता था उनको किसी बात पे। जब किसी बात पे गुस्सा आता तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते। तो मैं उनसे कहा करता था, मैंने किबला मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है ये। तो वो कहा करते थे, बेटा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब तक हम लोग कुर्बानी देने का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तब तक कौम बहाल नहीं हो सकती। जज़ाकल्लाह, क्या कहने। मुझे वो वजह भी याद रही हो, गालिबन जिक्र न करता हूँ, मसला अलग है कि किस बुनियाद पर जनाब आली मकाम ने मदरसा छोड़ा। और फिर मैंने जनाब मरहूम के मुतालिक इतना अपने वालिद से भी सुना था और खुद अपनी आंखों से भी देखा कि अख्तर साहब किबला जिस वक्त मजलिस पढ़ा करते थे किबला, मेरे वालिद मरहूम इसके शाहिद थे, और खुद मेरी आंखें ये चश्मदीद गवाह है कि जब वो जिक्र इमाम हुसैन करते, हुसैन के करीब आते थे तो फिर वो बेतहाशा हुआ करते। तो ये सब चीज़ें मिलना एक बहुत बड़ी बात है। फरजंद अली साहब के लिए यही काफ़ी है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बढ़ाना नहीं है, ये बढ़ाना, ये बढ़ाता है। अब अगर कोई बढ़ना ना चाहे तो उसकी अपनी कलाकारी। क्या कहने भाई, जज़ाकल्लाह। ये बढ़ाता घटाता नहीं। वाह 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 वाह। फरजंद अली साहब किबला मुमकिन है कि इस माना में गए, क्योंकि पहली बार तो उनके मुतालिक नहीं मिलता है कि वो कोई काम करते थे तो वो किसी की वजह से नहीं करते थे, बल्कि वो अल्लाह की मर्जी लिया करते थे, रज़ा इलाही मालूम क्या करते थे कि कहाँ है कहाँ नहीं। जब वो बुढ़ाने से गए तो तब भी कह के गए कि मैं कहीं सफर पर जा रहा हूँ, लिहाजा मेरा पीछा ना कीजिए। लोगों ने सोचा कि पता चले कहाँ गए, तो पता चला कि पता ही नहीं चला। आज उस दौर में देखिएगा, उस दौर में जहाँ आज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया यानी पूरी दुनिया की जिसे राजधानी कहा जाता है, उस आजादारी की बुनियाद में हिस्सा तकसीम करना और है, हिस्सा देना और है। क्या कहने। जहाँ सारे मुहिब्बान अहले बैत आके पोसा देते हैं, वाह 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 वाह, के हाथों की बनाई हुई जरी है। वाह 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 वाह, वहां से बम्बई का रुख किया, क्या कमाल की बात है। बम्बई पूरी दुनिया के लिए अपना मकाम रखता है, बम्बई का अपना एक मकाम है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी क्यों ना अपने वतन को पहुंचाओ। क्या कहने। वतन ही को नहीं पहुंचाया, वतन वालों को बुलाया, एक रास्ता फराहम किया, वतन वालों के हमरा रहे। जब मैं जाता हूँ मुंबई मौलाना जुबली में गया हूँ तो खुदा का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है, यहाँ आने से पहले भी और यहाँ आने के बाद भी। शायद निशात जाफरी हमारे चंदावत में हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, मेरा मौला उनकी मुश्किलात को आसान करे। जब मैं गया पहली बार तो मैंने उनसे कहा चलो कब्रिस्तान चलते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, खैरियत। मैंने कहा मौला का कौल है कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद रहे, ताकि तुम गुनाहों से तौबा करते रहो। तो कहने लगे वैसे वजह क्या है। मैंने कहा मुझे मौलाना नूरुल्लाह मरकज़ फरजंद अली साहब की कब्र पे जाना है। तो मुझे मालूम है उनकी कब्र, तो मुझे मालूम है कब्र ऐसे है, बराबर में पेड़ है, और फिर उसके बराबर में जो है वो कमाल अमरी साहब की अहलिया भी है, वो भी है। मैं फातिहा पढ़ने जाता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जुमला नहीं है, ये आखिरी कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहला चाहने वाला मौलवी देखा है जो फातिहा पढ़े। साहब अगर बुरी लगे तो माफ करना, इसलिए मैंने पहला मौलवी देखा है जो मुंबई शहर में आकर इतना बिजी होने के बाद भी कब्र पे फातिहा पढ़ना नहीं जाना भूलता। मैंने कहा मैं इनकी फातिहा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा निशात साहब मैं इनकी फातिहा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बल्कि मैं इनकी फातिहा पढ़ के अपने को बुलंद करने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने। और अल्लाह गवाह मैं कहीं भी रहूँ, किसी मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि वो सफर को ना भूले, कहीं भी रहूँ, किसी मकाम में भी रहूँ, जहाँ भी रहता हूँ, मैं मौलाना फरजंद अली साहब किबला नूरुल्लाह मरकज़हू, खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, मरहूम नासिर अब्बास साहब, अल्लामा सरकार मेहदी साहब, और मतलब बहुत सारे नाम हैं, ताहिर जरवली साहब, मोहम्मद ताहिर साहब, और मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब, ये सब अशफाक साहब, यानी शफीक साहब हयात अल्लाह सलामत रखे, अशफाक हुसैन साहब, ये सब मेरी फहरिस्त में एक मुस्तकिल मेरी फातिहा में शरीक होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको कभी फरामोश ना करो। इनके लिए फातिहा पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बुलंद कर लो। फातिहा पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपने मरहूमीन की तरफ मुतवज्जे हो। फातिहा पढ़ने का मतलब ये है कि आपको पता है कि मग़फ़िरत कैसे होती है। वाह 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 वाह। एक सलाम है मोहम्मद
लिए बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मेरा फिर वही मसला है, मैं आपकी मदद फिर अर्ज कर रहा हूँ, अपने मरहूमीन को फरामोश करना, उनको याद रखना, अपने को जिंदा रखना, और एक बाकमाल शख्सियत को याद रखना। इससे पता चलता है कि आपकी निस्बत किस तरह है। क्या कहने, क्या कहने? इससे क्या पता चलता है कि आपकी निस्बत किस तरह है। अभी मुझे पता चला ये बगरे दरगाह पे गए और मौलाना फरजंद अली साहब मुर्तज़ा के हवाले से जो है एक लाइब्रेरी का इंतखाब हुआ, लाइब्रेरी वजूद में आई। वल्लाहि व बिल्लाहि व तल्लाहि व लिल्लाहि कसम शरीक आई मेरे मुल्क साहब, इस पे सच खाने पे मकरूह और झूठ खाने पे कफ़ारा है इन कसमों को खाने से। मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ, ये मैंने बहुत पहले, वो बैठे साजिद भाई, वो बैठे हमारे चचा शाहनवाज, इन लोगों से मैंने बहुत पहले ये कहा कि जो हमारी करबला है, जिस तरफ माना के कदम मुबारक है, उस तरफ जो जरी रखी हुई है, वो किताबें रखी हुई है, वहाँ से हटा के इस तरफ जो है एक लाइब्रेरी वजूद में लाई है। एक ख्वाब है, था मेरा बारह में शर्मिंदा ताबीर हो चुका, उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी हो। हम चाहते हैं कि जब कोई हमारी इस बस्ती में बाहर से आलिम आए, जाकिर आए, मेहमान आए, तो वो अगर बोझल हो जाए तो उसके लिए किताबें रखी, वो पढ़ सकता है। ये मेरी अपनी तमन्ना थी जो मैंने इजहार किया था। बहरहाल अभी में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुमकिन है कि वो आ जाए, और इंशाल्लाह जब अगली बरसी की मजलिस होगी तो वो हम लोगों का ये ख्याल है, इंशाल्लाह आप लोग उसमें, आप ही लोगों का ख्याल है, उसको परवान चढ़ाना है कि इंशाल्लाह शब बेदारी कायम की जाए, और उसमें मौलाना फरजंद अली साहब के नाम से एक ऐसा ट्रस्ट कायम किया जाए जो हमारे बच्चे, वो किसी भी कबीले के हों, चाहे वो किसी भी बस्ती के हों, अगर वो शिया सनाशरी हैं और आइमा मासूमीन के चाहने वाले हैं, तो उनको इंटर या BA या MSc या MCom अगर वो अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो उनको फरजंद अली साहब अवार्ड से नवाजा जाए, जज़ाकल्लाह। फरजंद अली साहब को घर घर और बस्ती बस्ती आराम से पहुँचा सके। माशाअल्लाह। और फरमाया नबी मेरे बरादर अजीज ने बताया कि वो उन्होंने लिखा उसके ऊपर फरजंद अली बुढ़ा नबी। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ, ये कोई नया वाक़या नहीं है, बहुत पुराना वाक़या है। एक यहूदी आलिम दीन के पास एक वर्का था, मौलाना बैठे और वो मौजूद मोमिन से मिल जाएगा। यहूदी आलिम दीन के पास एक वर्का था, तो उसे दरिया पार करना था, तो मौलाए कायनात जो है वो खड़े हुए थे, मौलाए कायनात को भी दरिया पार करना था। देखिए इससे शायद कुछ और इसमें बरकत हो जाए। जैसे मौलाए कायनात बाहर खड़े हुए थे तो यहूदी आलिम दीन ने पूछा, ए भाई परदेश की खैरियत तो है, क्यों खड़े हो? कहा मुझे इस तरफ से उस तरफ जाना है। अल्लाह हुआ मारिफे मारिफे